from Gokhale Education Society, itself, Dr. M.S. Vasavi Polytechnic Institute, Nashik. Okay, so today we are going to learn the new subject of this semester is estimating and costing. This is introductory lecture of estimating and costing. Okay, so let's start with this presentation. Uh, So here on the screen you can see that the images of yellow cap, calculator, measurement tape and the plan. Okay, all this equipment we have to use in our estimating costing. ओके क्योंकि क्या है एस्टिमेट सब्जेक्ट क्या है उसमें हमें क्या क्या सीखना है ओके ये सब हम पहले जान लेंगे फिर आपको पता चलेगा कि किसका यूज कैसे होता है ओके So overall, we the engineers and we have to know the knowledge of the estimation and costing of the various structures and various quantities. That's why this subject is introduced in our syllabus. Here in this window, you can see that here is a teaching scheme, teaching and examination scheme for our fifth semester of third year. This is our subject, estimating and costing. Wait, uh, can you see this cursor? So this is estimating and costing. Our subject code is 22503. Uh, we have exam of 70 marks, written exam, and 30 marks of internal assessment. Okay, so if we have to qualify the exam, we need at least 28 marks for passing. Okay, afterwards we have 50 marks of practicals. Okay, so you can see that बाकी के सब्जेक्ट में 25 मार्क्स है लेकिन एस्टिमेटिंग के जो प्रैक्टिकल्स है वो 50 मार्क्स के लिए एक प्रैक्टिकल है सो इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट to learn the all the things and concept of the subject to perform the practice to perform the necessary practical okay so overall this is your scheme these are the 50 marks external examination is there okay and internal also 50 marks of practical is getting perform we have to perform afterwards this is our syllabus of estimating and costing here is the unit 1 fundamentals of estimating unit 2 approximate estimate unit 3 detailed estimate unit 4 rate analysis and unit 5 estimate for civil engineer works okay जनरली हमें क्या होता है कि 6 यूनिट होते हैं कभी कभी सिलेबस में बट एस्टिमेटिंग में 5 यूनिट्स है उसमें फर्स्ट एंड थर्ड क्वाइट वास्ट but it is really necessary for conceptual knowledge because in सब हर एक यूनिट के ऊपर अगला यूनिट डिपेंड है सो वी हैव टू लर्न ईच यूनिट वेरी केयरफुली एंड कीनली okay so here I'm introducing the unit 1 whole syllabus content so unit 1 title is fundamentals of estimating and costing we have allotted 8 hours of time and it will be asked for 12 marks okay in exam then its content is first estimating and costing ये जो estimating costing है इसका meaning क्या है okay इसका मीनिंग क्या है उसका पर्पस क्या है हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्यों करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है और बजट प्रोविजन क्या होता है इसके लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्यों नेसेसरी है ये सब हम इस यूनिट 1 में जानने वाले हैं आफ्टरवर्ड्स उसका जो सेकेंड पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के कुछ टाइप्स है जो हमें देखने हैं मेन टाइप्स है इसके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड डिटेल एस्टिमेट देन डिटेल्ड एस्टिमेट जो है जब नया वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है ये हमें थर्ड पॉइंट में सीखना है जब हम ये सीख लेंगे उसके बाद हमें देखना है कि जो हमने डिफरेंट एस्टिमेट के टाइप्स देखे उसके यूजेस क्या क्या है उसके बाद जब हम एज ए इंजीनियर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं तो हम एस्टिमेटर कहलाते हैं तो
एस्टिमेटर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा यूनिट 1 का। जब उसका आगे का नेक्स्ट पॉइंट है चेक लिस्ट ऑफ आइटम्स। जैसे कि हमें क्वांटिटी मेजर करना है तो उसकी लिस्ट होती है, मतलब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए मटेरियल एंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग होंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए अलग होंगे। Wait. Okay, so this is the next point. Another is mode of measurement of items. अगर हमें कोई भी क्वांटिटी या कोई भी मटेरियल हमें परचेस करना है तो उसका यूनिट मतलब मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कुछ नापते हैं तो मीटर में नापेंगे, लेकिन अगर हमें जैसे कुछ वॉल्यूम नापना है तो हम वो क्यूबिक मीटर में नापेंगे। सो हर एक मटेरियल का अलग अलग मोड ऑफ मेजरमेंट होता है, तो हम ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। हम ये सब मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइटम में डिटेल में देखने वाले। ऑलमोस्ट हम सारे आइटम्स इसमें कवर करेंगे। उसके बाद IS 1200 जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। IS 1200 ये सबको याद रखना है। ओके, कि एज पर IS 1200 ही हम सारे रूल्स यूज करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए। तो उसमें कुछ रूल्स दिए डिडक्शन के लिए। ओके, जैसे अगर हमें प्लास्टरिंग करना होता है या फिर वॉल विंडो कुछ ओपनिंग छोड़नी होती है तो उसके लिए हम कुछ एरिया डिडक्ट करते हैं कटिंग के लिए। ओके, तो वो डिडक्ट कैसे करना है उसके कुछ रूल्स हम इस सिक्स टॉपिक में हम लर्न करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम और डिस्क्रिप्शन एज पर PWD। जैसे कि हम जानते हैं सिविल इंजीनियर जो कोर फील्ड है, सिविल हम कहते हैं जो मोस्टली PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर हमारा काम ज्यादा चलता है। ओके, जैसे कुछ भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो PWD के थ्रू ही निकलते हैं। तो उसमें हमें DSR स्टडी करना होता है। ओके, DSR मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट। जो हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके नॉर्म्स उसके रेट्स चेंज होते हैं, तो इसलिए उसे डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट कहा जाता है। ओके, DSR। तो ये हमें स्टडी करना है, जो हर एक आइटम के लिए DSR दिया होता है और जो एनुअली चेंज होता है ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूनिट 1 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ मेजरमेंट शीट। जैसे कि हम सब क्वांटिटीज इसमें इस यूनिट में जैसे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे कोई मटेरियल हमें परचेस करना है उसका यूनिट क्या होगा, उसका रेट क्या होगा। ओके, तो ये सब हम कहाँ फील करेंगे, तो उसके लिए अलग से एक मेजरमेंट शीट्स बनाए हर एक आइटम के लिए। उसके वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हम हम लास्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, so let's going towards the first unit. These are the unit outcomes. Okay, यूनिट आउटकम क्या होते हैं कि जब हम कोई भी यूनिट सीखते हैं तो उसको सीखने के बाद हमें क्या क्या आना चाहिए। जैसे आफ्टर जब आप यूनिट 1 पूरी तरह से समझ लोगे, जब आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, तब आपको एक्सप्लेन करके आना चाहिए प्रोसीजर ऑफ द डिटेल एस्टिमेट। कोई भी स्ट्रक्चर दिया है तो उसकी प्रोसीजर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके आनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सिविल स्ट्रक्चर है उसके लिए चेकलिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो मोड ऑफ मेजरमेंट है वो आपको आने चाहिए। उसके बाद डिस्क्राइब द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है उस स्ट्रक्चर के लिए वो भी आपको समझने चाहिए। ये सब चीजें है यूनिट आउटकम्स में, वो आपको यूनिट 1 लर्न करने के बाद आनी चाहिए। ओके, मतलब तभी आपकी कंसेप्ट क्लियर है हम कह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डिडक्शन, मीन्स जो जो सिलेबस में मैं सिखाऊंगी वो सब आपके वो अगर आपको आ गए अप्लाई करने, एक्सप्लेन करने या फिर प्रिपेयर करने, तो वही आपके यूनिट आउटकम्स होंगे। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट आउटकम है आपका कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल अप्रूवल और बजट सैंक्शन। ओके, जो प्रोजेक्ट का होता है उसके साइलेंट फीचर आप एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं, ये भी यूनिट आउटकम में है। And then classify the given type of estimate on the basis of purpose। मतलब एक स्पेसिफिक पर्पज है उसके लिए हम कौन सा एस्टिमेट यूज कर सकते हैं ये हमें क्लासीफाई करके आना चाहिए अलग अलग टाइप के वर्क के लिए। सो दीज आर योर यूनिट आउटकम्स ऑफ द यूनिट 1 ओनली। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली यूनिट 1। Now these are the practicals on based on the unit 1. These are the two practicals. Okay, these are the two suggested practicals
in our syllabus copy. Prepare the checklist of items for the given structure, ये पहला वाला practical है. And another is prepare the detailed specification of the given item using DSR, ये हमारा दूसरा practical है. ये दोनों प्रैक्टिकल आपको जब यूनिट 1 चालू रहेगा तब आपको कंप्लीट करना है, मीन्स तब आपको परफॉर्म करने हैं. So let's start to the introductory lecture. This was our syllabus. Then now start with estimating and costing with our first chapter, first unit. ओके तो सबसे पहले एस्टिमेट क्या होता है. एस्टिमेट यहाँ पे जैसे डेफिनेशन दिए, एन एस्टिमेट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसीजर और मेथड ऑफ वर्किंग आउट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ अ वर्क. ओके मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी वर्क या फिर कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमें कुछ क्वांटिटी पे काम करना होता है. ओके जैसे उसमें खर्चा कितना आएगा, उसके बाद क्या क्या लगने वाला है, कहाँ से क्या आएगा, कैसे वो मेजर करेंगे. सो ये सब क्वांटिटीज, ये सब मटेरियल्स पे जब हम वर्कआउट करते हैं उसकी कॉस्ट हम स्टडी करते हैं, उसके रेट हम स्टडी करते हैं, वो कितना लगेगा उसकी क्वांटिटी हम स्टडी करते हैं. तो ये होता है नथिंग बट एस्टिमेट. सो एस्टिमेट क्या है, इट्स अ प्रोसीजर और मेथड ऑफ वर्किंग आउट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ अ वर्क. ओके सो एस्टिमेट में क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमें कुछ क्वांटिटी की कॉस्ट हम निकाल लेते हैं. ओके जिसको हम एस्टिमेटिंग कहते हैं. तो इसमें दो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटी और दूसरा होता है क्वालिटी. इट इज गवर्न बाय क्वांटिटी एंड क्वालिटी एस्पेक्ट. क्वांटिटी क्या होता है कि हमें सपोज हमें ब्रिक्स लगने वाली है या फिर सीमेंट लगने वाला है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो हम कितना क्वांटिटी में सीमेंट यूज कर लेते हैं. ओके सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज क्वांटिटी एंड अनदर इज क्वालिटी, जो हम स्पेसिफिकेशन में देखेंगे. क्वालिटी में कैसे होता है कि हम कौन से टाइप का सीमेंट यूज करने वाले हैं या फिर कौन से क्लास की ब्रिक यूज करने वाले, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड सो ऑन. सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस पे हमारा रेट डिफर होता है. जैसे एग्जांपल, अगर हम सीमेंट यूज करेंगे कुछ 2 बैग्स, कोई छोटा सा वर्क है फॉर एग्जांपल, या फिर 20 बैग्स, ओके उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट होगा. अगर हम हायर ग्रेड की तरफ जाएंगे तो उसका रेट हायर होगा. तो अल्टीमेटली हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो भी बढ़ेगी. अगर हम लो क्वालिटी की तरफ जाते हैं तो उसका रेट लो होगा. अल्टीमेटली उसकी एस्टिमेटिंग की जो कॉस्ट होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, लास्ट में वो लो होगी या फिर कम होगी. ओके सो दिस इज एस्टिमेटिंग. ओके देन कॉस्टिंग क्या होता है. कॉस्टिंग इज नथिंग बट द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट. जब भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं कोई भी काम, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले हम जब एक स्टार्ट करने से पहले जब हम एक्चुअल कॉस्ट उसके निकाल लेते हैं कि अप्रोक्स इतना खर्चा लगने वाला है. ओके ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले 1.5-2 करोड़ या फिर 1.5 करोड़, 1 करोड़ 35 लाख समथिंग हमें कुछ लगने वाले हैं. तो ये जो हमने एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन की है काम शुरू होने से पहले ही, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग क्यों हेल्पफुल होती है, अगर हम भाई काम चालू कर दे और पैसे नहीं हो तो फिर काम तो बंद पड़ जाएगा ना. तो इसीलिए सबसे पहले काम शुरू करने से पहले अगर हम कॉस्टिंग कर ले तो हम फाइनेंस अगर हमारे पास कम हो तो हम अरेंज कर सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं, हम बोरो कर सकते हैं या फिर कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं फाइनेंस. उसके बाद आगे में जो हम काम करने वाले वो उसका टोटल कितना होगा ये हमें पता चल जाएगा. ओके फिर उसके बाद कौन से आइटम के लिए हमें कितना पैसा लगने वाला है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, कितने रुपीस लगने वाले हैं, ओके वो हमें पता चलेगा कॉस्टिंग में. सो इट्स नथिंग बट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स जो हम एब्स्ट्रैक्ट शीट में एंटर करेंगे. सो ये होगा आपका कॉस्टिंग. ओके सो हम यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था और हमारे एक एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है ये हमने इस लेक्चर में देखा है. ओके उसके बाद हमने मार्किंग स्कीम क्या थी, क्या फिर क्या होगी, प्रैक्टिकल्स कैसे परफॉर्म करने यूनिट 1 के, कौन से प्रैक्टिकल्स है, उसके बाद यूनिट आउटकम्स क्या है और उसमें टोटल कंटेंट क्या क्या होने वाला है, ये सब हमने देखा है. होप आपको समझ आया होगा. आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग.